الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. الحمدللہ آج 11واں سلسلہ ہے اور ہمیں آج 11ویں ٹیم کی تلاش ہے. الحمدللہ 10 ٹیمیں سلیکٹ ہو کر اگلے راؤنڈ تک پہنچ چکی ہیں. پہلے 16 ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی، یعنی 16 مقابلے اسی طرح چلتے رہیں گے، اور جیسے ہی 16 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائے گا. یعنی ہر مقابلے میں ایک ٹیم ہم سے جدا ہوگی اور ایک ٹیم آگے بڑھتی جائے گی. 16 مقابلوں میں سے 16 ٹیموں میں سے پھر 8 ٹیموں کا چناؤ ہوگا. ان 8 ٹیموں کے درمیان کوارٹر فائنل ہوں گے، اس میں سے 4 ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی. پھر 4 ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل ہوگا اور اس سے 2 ٹیمیں سلیکٹ ہو کر ذہنی آزمائش سیزن 17 کے فائنل میں پہنچیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. میرے ساتھ آج میرپور کشمیر اور سیال شریف سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں. طویل سفر کر کے آئے ہیں مگر تیاری کیسی کر کے آئے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. آئیے وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو ہم اپنے منچ پر بلاتے ہیں. جی دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی تشریف لائیے. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے مگر وقت ہوا ہے. آپ کو بتاتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 17 کا 10واں مقابلہ جو کل ہوا تھا کیسا رہا، کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی اور کون سی پیچھے رہ گئی. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور سیزن 17 کی آج 10ویں ایپیسوڈ ہے. آسمان والوں کے لیے مساجد کی کتنی اہمیت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ پاک کے گھر ہیں اور یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے. جواب درست دے دیا ہے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہما نے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا تھا. صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا. غلط. یوم عرفات 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. صحیح. لمبے ناخن شیطان کی نشستگاہ نہیں ہیں. غلط. حضرت عثمان غنی کا بازار مبارک مکے میں ہے. غلط. ٹھیک ٹھاک غلطیاں ہو گئی ہیں آپ سے جناب. پہلے تینوں سوال کے جواب میں آپ نے غلطی کر دی ہے جناب. 2 نمبر آپ کو ملیں گے. اب باری انیس صاحب کی ہے، ملتان سے تعلق. گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکہ ایھا النبی کہیں. صحیح. ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک مکے میں ہے. غلط. ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام احمد رضا خان کے خلیفہ نہیں ہیں. غلط. صراط الجنان حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. غلط. کتاب حیات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تصنیف ہے. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. بری والوں نے بڑی کوشش کی لیکن جناب آج کا مقابلہ مدینہ الاولیاء ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکروا اللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کل مری والے پیچھے رہ گئے اور مدینہ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھ گئے. آج دیکھنا ہے سیال شریف یا میرپور کشمیر. آئیے کشمیر والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. اپنا نام بھی بتائیں، اپنی کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال فیاض اتاری ہے. میرے ابو کا نام محمد فیاض اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم ڈڈیال میں درجہ ثانیہ کا یعنی 2nd ایئر کا طالب علم ہوں اور بیسکلی میرا تعلق کوٹلی کھویرٹا آزاد کشمیر سے ہے. چلیں جناب دوسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریحان اتاری، والد محترم کا نام محمد ریاض، اور میں کشمیر کے ڈسٹرکٹ کوٹلی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ماڈل جامعۃ المدینہ F3 میرپور کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانیال شبیر ہے
اور میرے والد صاحب کا نام محمد شبیر کیانی ہے۔ میرا بیسکلی تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ کوٹلی کی تحصیل کھوئیرٹا سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کوٹلی میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرپور کشمیر کے اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے، کیسے ہوئے؟ آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ مدنی چینل کی ٹیم سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کو لے کر آج ہمارے کشمیر کے شہر میرپور میں آ چکی ہے۔ اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا۔ قیامت کے دن کو یوم عسیر کیوں کہتے ہیں؟ پورے حساب اور عذاب کے اعتبار سے یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، اس اعتبار سے اسے یوم عسیر یعنی بڑا سخت دن کہتے ہیں۔ عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا۔ اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ کیسے میرپور کشمیر کے اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے۔ میری بائیں طرف سے آل شریف کے اسلامی بھائی ہیں، نام بتائیں گے، مصروفیات بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی محمد ریاض ہے، اور میرا تعلق ضلع خوشاب کی تحصیل قید آباد سے ہے، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے میٹرک کمپلیٹ کی ہے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سفیر رضا عطاری ہے، میرے والد محترم کا نام ولی محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ علی ٹاؤن سرگودا میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا بیسیکلی تعلق کٹھا سگرال ضلع خوشاب سے ہے۔ ماشاءاللہ جی، تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان حیدر عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام میاں محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا میں 5th ایئر یعنی 5ویں سال کا طالب علم ہوں، اور بیسیکلی میرا تعلق ساہیوال سیال شریف کے قریبی گاؤں آل کمو سے ہے۔ چلے جناب، آس پاس کے اسلامی بھائی آئے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ امیدیں آئے ہوں گے، کیسے سلیکٹ ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 17 کی آڈیشن ٹیم سفر کرتے کرتے آج پہنچ چکی ہے پنجاب کے شہر سیال شریف میں۔ آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا۔ خرچ کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو تو مجھے یہ اچھا لگے گا کہ 3 راتیں ایسی نہ گزریں جن میں اس سونے سے کچھ بھی میرے پاس ہو بجز اتنے کہ جسے ادائے قرض کے لیے رکھوں۔ وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا، کیسے یہاں تک پہنچے یہ بھی ہم نے بتایا۔ وقت ہوا ہے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن کے سوال کا۔ اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سوال کیا ہے؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے منجنیق کس شہر والوں کے خلاف استعمال کی؟ ویری یونیک کوئسچن ہے، میرے لیے بھی نیا کوئسچن ہے۔ طائف، بدر، مکہ یا حنین؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے منجنیق کس شہر والوں کے خلاف استعمال کی؟ یہ سوال ہے، 4 میں سے ایک آپشن درست ہے، صحیح جواب دیجئے۔
अपनी आईडी सेव रखिए। एक सवाल, ये भी बड़ा कमाल का सवाल है जो आपने मैसेज के जरिए जवाब देना है कि किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए बगैर पानी के दरख्त उगाया गया? जी हाँ, क्या शान है मेरे रब की। मेरा रब जो चाहे अपने कुदरत पर कादिर है। क्या सवाल है कि किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए बगैर पानी के दरख्त उगाया गया? लोग कहते हैं पानी के बगैर दरख्त नहीं उगता। मेरा रब चाहे तो सब हो सकता है। आपने वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी बताना है और इसका जवाब मैसेज के जरिए देना है। वक्त हुआ है जो कल सवाल किया गया था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो कल सवाल किया गया था वो ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था। तो जवाब है आप उनके पड़पोते थे। ये जवाब तज़किरतुल अंबिया किताब में मौजूद था। हमारे पास जो नाम है उनमें इश्तियाक अहमद जामपुर, उम्मे आतिका अत्तारिया उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, हाफिज़ जुनैद अत्तारी नवाब शाह, मोहम्मद एहतशाम, ग़ुलाम यासीन केसर गुजरात, मोहम्मद अजीम अत्तारी हरीपुर, बिनते ग़ुलाम रसूल अहमद डेरा गाजी खान, आसिफ अली अत्तारी खानपुर, बिनते मोहम्मद अनवर अत्तारिया कोट सब्ज़ल, अकरम शाह अत्तारी खारादर कराची, मोहम्मद सुलेमान खैबर पख्तूनख्वा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और हमारा तोहफा जामपुर जा रहा है। जामपुर से इश्तियाक अहमद भाई। इश्तियाक अहमद भाई, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। जी चले भाई, जामपुर वालों को मुबारक हो। अब ये जामपुर सिंध में है, पंजाब में है, पहली बार नाम सुना है, लेकिन क्या शान है। कहाँ कहाँ मदनी चैनल भी है और कहाँ कहाँ दावत इस्लामी भी है। जनाब, आइए आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फ़िक़ह हनफी और उसके दलाइल, तलाश कीजिए कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड करते हैं, इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे इंशाअल्लाह मीरपुर कश्मीर वालों से। किसी मुसलमान को समझाने का क्या अंदाज होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना सुलेमान खवास रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है कि जिसने किसी मुसलमान को पोशीदा तौर पर समझाया तो उसने उसे नसीहत की, और जिसने किसी मुसलमान को ऐलान समझाया तो उसने उसे जलील कर दिया। नाजरीन, ये काश बात में और आप समझ जाएं कि अगर किसी की कोई गलती भी है, किसी को समझाना भी है, तो सबके सामने क्यों समझाना है। लोग बाज़ औक़ात सबके सामने समझाते हैं जिससे अगला ज़ाहिर है कि इंसल्ट फील करता है। समझाना है तो प्यार से, मोहब्बत से, अकेले में समझाएं। और अब तो मैसेज का जरिया भी है, कोई मकतूब भी लिखा जा सकता है कि आपकी फलां बात आपने दुरुस्त नहीं की, आपका ये अंदाज दुरुस्त नहीं था, और उसको भी अच्छे अंदाज में बयान करें तो उम्मीद है कि आपका समझाना कारबंद भी रहेगा, फायदा भी देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु जुमेरात को दर्स दिया करते थे, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जुमरात को दर्स दिया करते थे, इसकी वजह यह है कि ये जुमा का पड़ोसी है और इसकी बरकतें जुमा तक पहुंचती हैं। क्या बात है, जुमेरात का दिन जुमा का पड़ोसी है, बरकतें जुमे तक पहुंच जाएंगी। अब सुभान अल्लाह, गौर करें कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा जुमेरात को होता है, तो सुभान अल्लाह बरकतें जुमे की भी मिलती हैं, शबे जुमा की भी मिलती हैं। हर हफ्ते पाबंदी के साथ दावत इस्लामी के जुमेरात वाले इज्तिमा में आया करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तौहीद के कितने मर्तबे हैं? अकीदा तौहीद बहुत जरूरी अकीदा है, लाजमी अकीदा है। आज इसके बारे में मजीद सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीदा तौहीद के 4 मरातिब हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद समझना। नंबर 2, अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद समझना ना समझना। अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद ना समझना। नंबर 2, आलम रूहानी और मादी आलम का खालिक सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना। आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान जितने भी अशिया हैं, इनमें तसर्रुफ़ और तदबीर का खालिक सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना। और इसी तरह सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना, और सिवाय मुस्तहिक इबादत सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को ना समझना। जनाब, तौहीद के 4 मर्तबे हैं।
अल्लाह पाक के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद न समझना, तमाम रूहानी और मादी आलम का खालिक सिवाय अल्लाह पाक के किसी और को न जानना, आसमान और जमीन और उनके दरमियान की चीजों में तमाम तदबीर और तसर्रुफ को अल्लाह ताला ही की जात के साथ मखसूस समझना, और नंबर 4 अल्लाह पाक के सिवा किसी को मुस्तहिक के इबादत न समझना। अकीदा तौहीद ये हमारे ईमान की जान है, और यही चारों चीजों को जी बात हो रही है, ये हम सबका अकीदा है और हमेशा होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज कराची स्टूडियो वाले कुछ थोड़ा सा ठंडा लग रहे हैं? हर सही जवाब पर बाआवाज़े बुलंद क्या कहेंगे? हर सुभान अल्लाह पर जन्नत में दरख्त लग जाता है मिलकर क्या कहेंगे? सियाल शरीफ, इस्तिदराज क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बात जो फुसाक या कुफार या किसी से उनके मुवाफिक बयान हो उसको इस्तिदराज कहते हैं। सही तरीके से बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वो बात जो फुसाक या कुफार के मुवाफिक यानी उनके मुताबिक हो तो उसे इस्तिदराज कहते हैं। मुवाफिक जाहिर हो उसको इस्तिदराज कहते हैं, मगर एक और बात भी है इसमें। बेबाक फुज्जार या कुफार से जो बात खिलाफे आदत उनके मुवाफिक जाहिर हो, यानी बात खिलाफे आदत है और उनके मुवाफिक है, उसको इस्तिदराज कहा जाता है। तो अब आधा जवाब आपने दिया है, मजलिस देख ले, इसमें जब नंबर पूरे देने हैं। चले, जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात कुफ़ार भी ऐसे काम कर देते हैं जो खिलाफे आदत होती है, और जो कह रहे होते हैं उसके मुआफिक होता है। तो ये इस्तिदराज है, इस पर यकीन नहीं करना, और इसको मादअल्लाह ये नहीं समझे कि कुफ़ार ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये इस्तिदराज हो जाता है। जनाब मीरपुर कश्मीर वालों से सवाल, नूर व बशर होने के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारा अकीदा क्या है? नूर व बशर के एतबार से नबी पाक के मुतालिक हमारा अकीदा क्या है? 7 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा ये अकीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं, क्योंकि नूरानियत ये बशरियत की ज़िद नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाया। ये वो तो आप इंशाल्लाह अगले सवाल के जवाब में देंगे कि आपने जवाब दे दिया कि नूर भी हैं बशर भी हैं, यानी हकीकत के एतबार से नूर और सूरत के एतबार से बेमिसल बशर हैं, यानी अंतल बशर लाकल बशर। आप ऐसे बशर हैं जैसा कोई और बशर नहीं है, और सुभान अल्लाह आप हकीकत के एतबार से नूर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इसकी तफसील में जाते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई नूर भी हो और बशर भी हो? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन ये दौर है लुटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर और बशर जमा हो सकते हैं, और इसकी दलील यह है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए, और आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए, और इसकी कोई दलील, कोई कुरान पाक की आयत? जवाब तो आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नाजरीन, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि नूरानियत और बशरियत एक दूसरे की जिद नहीं है। जैसा कि जिब्रील अमीन हजरत मरियम के पास जब हाजिर हुए थे तो इंसानी शक्ल में हाजिर हुए। कुरान पाक की खूबसूरत आयत, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, तो उसकी तर्जमा कंजुल ईमान, तो उसकी तरफ हमने अपना रूहानी भेजा, वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुआ। तो जब हजरत जिब्राइल जो हैं वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, नूर है ना, तो सुभान अल्लाह, इसका मतलब नूर और बशर होना ये एक दूसरे की जिद नहीं है। तो नबी पाक बेमिसल बशर भी हैं और हकीकत में नूर भी हैं। कुरान पाक में क्या फरमाया, दोबारा सुनिए, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन, अब अगली सवाल की तरफ चलेंगे, और ये सवाल अब ऑप्शन वाले होंगे। ऑप्शन मूव करता रहेगा, आप स्टॉप करेंगे तो टॉपिक रुक जाएगा, फिर उसमें आपने सवाल आपसे पूछा जाएगा। जनाब दिखाइए टॉपिक्स।
स्टॉप। औलिया किराम से मुताल्लिक सवाल होगा आपसे जनाब। हजरत सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब दलाइलुल खैरात, इनका मज़ार कहाँ वाक़ है? हाँ, मदनी चैनल पर बताया गया। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला का मज़ार जो साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ है, मुसन्निफ दलाइलुल खैरात। आप चाहे तो ऑप्शन ले लें, चाहे तो मदद ले लें। हेल्प लेंगे भाई जनाब, हेल्प बताइए। वैसे तो मैं हेल्प कर नहीं सकता, वरना मुझसे हेल्प लेते तो सही जवाब देता। मैं हाजिरी देकर आया हूँ जी। चले जनाब, कौन से भाई? ये वो वाले भाई, वो वाले कौन से? वो वाले ब्लैक वाले भाई कौन है? टोपी वाले, ब्लैक टॉप, अच्छा ब्लैक टोपी वाले। ये वाले भाई चलेंगे? ये वाले चले भाई, ये वाले भाई देखो बगैर ऑप्शन के इनके पास चले गए आप जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक मराकश में मौजूद है। चले जनाब, अब आप बता दें इनके साथ जाएंगे या हर मदद दुरुस्त भी नहीं होती, ये भी याद रखें। ठीक है, ठीक है, इनके साथ जाएंगे। चले भाई, अल्लाह करे आप चारों मिलकर जाएं उनके मज़ार पर। मराकश जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, आपकी भी मराकश इनके मज़ार शरीफ पर हाजिरी हुई थी और आपने फरमाया था कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि वहाँ बैठ के दलालुल खैरात शरीफ पढ़ने की। तो जब आपकी ये ख्वाहिश पूरी, तो आपकी कैफियत क्या थी जब आप वहाँ पहुँचे और आपने दलालुल खैरात शरीफ खोली? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यकीनन बहुत अरसे से, यानी ये मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि बरसों की ख्वाहिश थी मेरी। दो बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी औलिया किराम के हवाले से मज़ारात, क्योंकि बाकी जगह पर हाजिरी हो गई थी। एक इमाम बुसैरी के मज़ार पे जाना था, कसीदा बुर्दा शरीफ एक दिल से लगाव था उनसे, और एक हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली दलालुल खैरात शरीफ, क्योंकि उनकी फजीलत तो बचपन से फैज़ान सुन्नत में पढ़ते थे कि उनकी कब्र से मुश्क की खुशबू आती थी जब उनकी तदफीन हुई थी, और उन्हें ऐसी किताब लिखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मराकश का सफर हुआ और वो निगरान शुरा के साथ हुआ। तो हुआ ये कि हम ट्रेन में जा रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर जाना था जो उनका मज़ार शरीफ जहाँ पर था। तो हमने नियत की थी कि हम जितने काफिले वाले सब पूरी दलालुल खैरात शरीफ अलग अलग पढ़ेंगे और हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इसाले सवाब करेंगे। तो अब ट्रेन में हमने पढ़ना शुरू कर दी, तो बड़ा अच्छा मंजर था। ट्रेन में हम पढ़ रहे हैं सारे, और आखिरी बाब जो था वो हमने रख छोड़ा था कि हम इंशाल्लाह उनके कदमों में जाके पढ़ेंगे। फिर उनकी बारगाह में हाजिरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो आखिरी बाब पढ़ने की सआदत मिली, और यकीनन एक अजब कैफियत थी। इतनी अजीम दुरूद पाक की किताब, और जिस किताब की बरकत से कईयों को नबी पाक की ज़ियारत नसीब हो, जब उन बुजुर्ग के कदमों की हाजिरी हो तो फिर शान ही निराली है। बहरहाल उसके मनाजिर नाजरीन आप मदनी चैनल पर देख सकते हैं। इस हाजिरी को और मराकश के सफ़र को हमने रिकॉर्ड भी किया था, सिलसिला है हमारा ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा, तो आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको उसका सुरूर आएगा। अब वक्त हुआ है सियाल शरीफ वालों का, और इनको बताइए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप स्टॉप कहेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, फिर आपसे सवाल किया जाएगा। नाज़रीन, मदनी चैनल का लाइव सिलसिला जारी है, ज़हनी आज़माइश सहाबाए किराम। टॉपिक है सहाबाए किराम। अब उस पर सवाल क्या है? बरोज़े क़यामत किस सहाबी को इमामुल उलमा कहा जाएगा? अब आप चाहे तो मदद ले सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं। इमामुल उलमा, मदद लेंगे। मदद लेंगे, क्या बात है, लगता है मददगार तैयार करके लाए गए हैं। जनाब बताइए किससे मदद लेंगे? वो सामने इस्लाम। कौन से इस्लाम पे खड़े हो जाए भाई जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? अच्छा जनाब, इमामुल उलमा जी, यही है जी, यही है जी। हजरत सैयदना मुआज़ इब्ने जबल को। मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा मैं आपको ऑप्शन बताऊं, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? हजरत अबू हुरैरा, हजरत अली, हजरत मुआज़ बिन जबल। इमामुल उलमा किसको कहा जाएगा? मुआज़ बिन जबल। इनके जवाब के साथ जाएंगे। अल्लाह अकबर। सोच ले, मौला अली को नबी पाक ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, और आप जा रहे हैं हजरत मुआज़ बिन जबल वाले जवाब पर। हाँ भाई, उधर ही जाएंगे। चले जनाब, आपकी मर्जी है, आप उन्हीं की बात मान रहे हैं, हमारा इशारा भी नहीं ले रहे, लेकिन सही मान रहे हैं। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कभी कभी हम कोशिश करते हैं ट्विस्ट करने की। बहरहाल मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है। चले जनाब, दिखाइए टॉपिक्स। स्टॉप। स्टॉप करे भाई। जनरल नॉलेज। बताइए क्या सवाल है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस शहर में है? इसकी मदद लेंगे या ऑप्शन लेंगे? मदद लेंगे।
मदद लेंगे। किसी कब्रिस्तान वाले से तो मदद नहीं लेंगे ना? अल्लाह। ये फ्रंट अच्छा चले भाई, कौन से वाले भाई? इन वाले भाई से मदद लेंगे। चले भाई खड़े हो जाएं, वो खड़े। जनाब आ जाए। देखते हैं कि मददगार मदद सही करते हैं कि नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनियापुर शहर से। अच्छा, दुनियापुर में कब्रिस्तान है? नहीं, ये दुनिया। अच्छा, ये दुनियापुर से। अच्छा अच्छा, ठट्ठा मकलीम। चले जनाब, मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठट्ठा, दादू, कराची। कराची जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है। कब्रिस्तान में आबादी कहाँ ज्यादा है? देख लें आप, कौन सा है? ठट्ठा शरीफ। ठट्ठा ही है। चले भाई, ठट्ठा है और बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सियाल शरीफ वालों की बारी है। ऑप्शन दिखाइए जनाब। स्टॉप। स्टॉप। सहाबा इकराम अली बुर्दवा। फिर सहाबा का इनका टॉपिक आ गया है। फातिह मिस्र किन सहाबी का लकब है? ऑप्शन लेंगे या मदद लेंगे? मदद लेंगे। कोई है मददगार जिससे मदद लेंगे? सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब हाथ उठाया एक दो इस्लामी भाई यहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ भी शाहजी से। शाहजी से। ये शाहजी। कौन से शाहजी साहब? आजा भाई। कमाल है, मददगार भी अलग अलग हैं। हर सवाल के लिए अलग इस्लामी भाई रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत उमर बिन अल-आस। वैसे तो आपका जवाब एक तरह से गलत हो जाता है, वो हजरत उमर नहीं है, हजरत अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये भी राउंड पूरा हो गया, पूरे नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। आइए हाजरीन से सवाल लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स भी लेते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हजरत इसहाक के वालिद। कोशिश करें कि टीम के इस्लामी भाइयों से सवालात ना लें, मेहमानों को मौका दें। ना हो तो फिर अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इतर शरीफ और बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में पेश की जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब अगला सवाल कीजिए। अच्छा जी, ये बताइए कि हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? हज फर्ज होना, कौन से साल हज फर्ज हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मोहम्मद हसनैन भावलपुर से। हज सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। अच्छा जी, 2 हिजरी में। 3 ऑप्शन है, 9 हिजरी, 10 हिजरी या 11 हिजरी। हज फर्ज होने की बात कर रहे हैं या हज अदा होने की बात कर रहे हैं? हज फर्ज। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बच्चों को भी पता है। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9 हिजरी। ये कहाँ से आपने जवाब दिया? आपने पढ़ा था कहीं? तो कैसे पता? ऐसे 3 में से कोई एक लगा दिया आपने? ऐसे ही है? हाँ, जवाब तो आपका सही हो गया। ऑप्शन बच्चों के लिए काम कर गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो बापू इनको क्या देंगे? इन्हें इंशाअल्लाह हम सौगात मदीना पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु अमीर हज बनकर काफिला लेकर 9 हिजरी गए और फिर 10 हिजरी को सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी हज फरमाया जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। नाजरीन, यहाँ तो सारे के सारे सही जवाब हो गए हैं। आइए वक्त होता है आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद अमान अतारी मीरपुर कश्मीर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई ज़हनी आज़माइश का सिलसिला बहुत ही अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मीरपुर कश्मीर की टीम बैठी हुई है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको मदीने पाक की हाज़िर से मुशर्रफ फरमाए। और जिन जिन की तमन्ना है मदीने जाने के, अल्लाह ताला तमाम को मदीने पाक की हाज़िर से मुशर्रफ फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा।
غلام الدین اتاری چشمہ میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے کلاس فیلو سفیر رضا اتاری سیال شریف کی ٹیم میں موجود ہیں. اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. چلے جناب، دونوں طرف کی ٹیموں کے مددگار اور محبین کی کالز آ گئی ہے، دعائیں بھی آ گئی ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے. ناظرین، وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. اب باری ہے میرپور کشمیر والوں کی. در نایاب بلا شک ہیں وہ ہیرے انمول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در نایاب بلا شک وہ ہیرے انمول، اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں. اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں. نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، نام ان کا جو مصیبت میں لیا ہوئی آنکھوں سے بےتاب نگاہوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روتی ہوئی آنکھوں سے بےتاب نگاہوں سے ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں. ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے کے غموں کی تم للہ دوا دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. دنیا کے غموں کی تم کی راہ گزر میں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنیں گے، یہ دیدہ مشک خرام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنیں گے، یہ دیدہ مشک خرام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہی ہے شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی ہے شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہی ہے شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا. پی کے پلا کے میں کشوں ہم کو بچی کچھ ہی دو. پی کے پلا کے میں کشو ہم کو بچی کچھ ہی دو. قطرہ دو قطرہ ہی سے ہی کچھ تو برائے نام دو. قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں یہ اسی کے نام دو. کیا خوبصورت بات کی ہے. ذات حسن حسین عین شبیہ مصطفیٰ ہے. یعنی سبحان اللہ کمال دیکھیں کہ جو نبی پاک کے نواسے تھے امام حسن سر سے لے کر سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک نبی پاک کے مشابہ تھے. جب ان دونوں کو ملایا جاتا تھا تو پوری نبی پاک کی تصویر سامنے آ جاتی تھی. نبی پاک کی پوری شبیہ سامنے آتی تھی. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ناظرین اب پانچواں سوال ان دونوں سے کچھ ہٹ کے ہے. آپ کو بھی بڑا انتظار تھا اس سیگمنٹ کا کہ طرز سنا کر اب انہوں نے نعت پہچاننی ہے. تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک طرز سنائی جائے گی. اب باری ہے پہلے میرپور کشمیر والوں کی. غور سے طرز سنیں گے اور 30 سیکنڈ کے اندر بتائیں گے کہ یہ کون سا کلام ہے یا کون سے شعر کی بات ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جواب درست دے دیا ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری سر بنتے ہیں سیاروں کے. سیال شریف والوں کی باری ہے. آؤٹ آف سلیبس بھی کلام آ سکتا ہے. آپ کے نصیب ہے آپ کتنی نعتیں سنتے ہیں کتنی طرزیں یاد ہیں. اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. بتائیے جناب. سیکنڈز تھوڑے ہی رہ گئے ہیں. یہ کلام حالانکہ ذہنی آزمائش میں پڑھا بھی گیا ہے پچھلے دنوں. وقت تو پورا ہو گیا آپ کا. نہیں پہنچ سکے ہیں. کون بتائے گا یہاں پر؟ یہ سب مل کے ہی پڑھ دیتے میرا خیال ہے. سب کو ہی پتا ہے. سب مل کے پڑھیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا
स्टूडियो में अक्सर इस्लामी भाइयों को मालूम था। बहरहाल अब बारी आपकी है, आप में से भी किसी को एक तर्ज सुनाते हैं और वो आपने पहचाननी है, मगर पहले एक शेर सुनाएं और एक इंशाल्लाह। अच्छा, आज तर्ज आपके लिए नहीं है, चले कल से आपके लिए भी हम एक तर्ज इंशाल्लाह रेडी करेंगे। आज आपसे इंशाल्लाह लाइव तर्ज कर ले फिर। क्या बात है, आरिफ भाई मौजूद है माशाल्लाह। आरिफ भाई एक लाइव तर्ज में आप कलाम पूछते चले भाई, आप रेडी कर ले, जब तक मैं एक शेर इनसे सुन लेता हूँ, ठीक है ना? नहीं, हम आपसे एक शेर ना सुन ले। पहले तो इनकी तो बारी आने दो ना यार। कौन सा शेर सुने? आसान सुने, मुश्किल सुने? आसान करना है, चले आसान कर लेते हैं। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, ये भी मुश्किल हो गया। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रिजवान अत्तारी, ये नॉन नाज़ाबाद। माशाअल्लाह। जिसके दो बूंद है कौसरो सरसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वसाइल बख्शिश ये किताब तोहफे में दी जाएगी। माशाअल्लाह। जी आरिफ भाई अब तर्ज करें भाई। वाह वाह वाह। हाय हाय, तो बड़ा मशहूर कलाम और आजकल तो दिल पे लगा हुआ कलाम आपने पढ़ दिया। चले भाई देखिए कौन सुनाते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह, बच्चे भी आगे बहुत सारे मौजूद हैं। अच्छा, इनमें से वो जवाब दे जो सबसे दूर से आया है। चलो कोई कैटेगरी तो करे ना। चलो ये लाहौर वाले आए हैं, और कौन इससे दूर कौन आया है? फैसलाबाद। अच्छा, और ये आप पाकिस्तान में ही नहीं घूमे, हमारे साथ बांग्लादेश के इस्लामी भाई। हाँ, फिर तो इससे दूर से कोई चले भाई। बांग्लादेश वाले लेकिन बांग्लादेश वाले को बंगाली नात पे ना पहुंच गए, सही पहुंच गए इन पे। चले बताएं जी। कलम आला हजरत उनकी महक ने दिल के गुंज से दिला दिए हैं। हाय हाय हाय, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। तोहफा दे भाई इनको माशाल्लाह। इनको इंशाअल्लाह ज़ब्जल जल्दबाजी के नुकसानात ये किताब तोहफे में इंशाअल्लाह दी जाएगी। ये सुन के की महक ने दिल के गुलछे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे आका जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इश्क के बोल में आपने एक आखिरी में शेर पूछा, ज़ात हसन हुसैन है ऐन शबीह मुस्तफ़ा, ज़ात है एक नबी की ज़ात है ये उसी के नाम दो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी एक शेर में इन्हीं दो शहजादगान के बारे में फरमाया कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते हैं। वो शेर बताएं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिवतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तो अब में लिखा है ये दो वर्का नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हज़रत की, और क्या बात है कसीदा नूर की, और क्या बात है ये प्यारे शहजादों की। सुभान अल्लाह। चले जनाब कॉल लेते हैं, सिलसिले में कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब अंकल बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। मैं आपके साथ ज़हनी आज़माइश करूंगी। सेगमेंट है इसके बोल। पहला शेर मैं पढ़ूंगी, दूसरा मिसरा आप सुनाएंगे। सोचती हूँ मैं
वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी। आप तो सोचती हैं और मैं तो सोचता हूँ, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। इंशाअल्लाह जल्द हाजिरी होगी। एक और कॉल दीजिएगा। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आला हजरत अलैहि रहमा का कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ सीख कबाब का जिक्र हुआ हो। सुभान अल्लाह, ये एक अलग से ही सेगमेंट हो गया ये तो अब रोज लोग मुझसे ही मैं थोड़ी तैयारी करके आता हूँ भाई। सीख कबाब, मजा जो दिल के कबाब में है, ये तो है। सीख कबाब का तो नहीं नजर में आया, शायद उन्होंने अपने इलाके का सीख कबाब याद कर लिया होगा। कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। इसका पहला मिसरा भी है ना, ए दिल ये सुलगना क्या, नहीं यही है, नहीं ये नहीं है जी। जली जली सी बू, जली जली सी बू सोजिशे, जली जली सी बू से इसमें पैदा, उसकी बू से पैदा, ये सोजिशे इश्के 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 चश्मे वाला, कबाब आहू में बाना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है। चले भाई, आप लोगों ने तो मुझे काम पे लगा दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं सेगमेंट, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 18 नंबर है सियाल शरीफ, 20 नंबर है मीरपुर कश्मीर। अगला सेगमेंट जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब आइए, मीरपुर कश्मीर के इस्लामी भाई, 15 बॉक्सेस हैं, कोई भी टॉपिक मिल सकता है और उसके 15 नाम आपने बताने हैं। जनाब देखिए क्या तलाश करते हैं, कौन सा बॉक्स खोलते हैं। 7 नंबर खोल रहे हैं, क्या है उसके अंदर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नातिया 15 कलाम के नाम। वाह भाई वाह, आसान आ गया भाई, रख दे वापस अंदर। 15 नातिया कलाम आला हजरत के। बताइए जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आसमां को यूं सरकशीदा होना था, खराब हाल किया, दिल को पर मलाल किया, बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, वो सुएल आलाज़ार फिरते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, सरतावा कदम है तेरे सुल्तान ज़मन फूल है, कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। जनाब कितने हो गए? 10 हुए हैं। लमियाती नज़ीरू का फी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, वाह क्या जुदो करम है शह बता तेरा, आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एरियां। 13 जल्दी करें। अल्लाह वक्त खत्म हो गया। आप 14 भी कर लेते तो हम आपको 2 नंबर देते। बहरहाल बड़ी अच्छी कोशिश थी, आपको 1 नंबर दिया जाएगा। बारी है सियाल शरीफ वालों की, तशरीफ लाइए और बॉक्स खोलिए। कौन सा बॉक्स खोलते हैं जी? क्या है इसमें? क़यामत की 15 निशानियां। कयामत की 15 निशानियां। ये माइक पकड़िए, बॉक्स अंदर रखिए इसके अंदर, और आपका वक्त शुरू होता है अब। 15 निशानियां कयामत की, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा, आलिम बाकी ना रहेंगे, बदकारी और बेहयाई आम हो जाएगी, बदकारी और बेहयाई आम हो जाएगी, मर्दों औरतों की तादाद मर्दों से बढ़ जाएगी, वक्त जल्दी गुजरेगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा, दरजाए फ़ुरात से सोने का, दरजाए फ़ुरात से सोना उगलेगा, ज़मीन अपने दफीने उगल देगी। ठीक है, बड़ी निशानियों पे आ जाएं। कितने हो गए? कयामत की निशानियां।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, दज्जाल आएगा, दाब्बतुल अर्द आएगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी निशानियां। बहरहाल 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बारी है फिर मीरपुर कश्मीर वालों की। आइए जनाब। 12 नंबर खोल रहे जनाब, क्या है इसमें बताइए। सदके के 15 फजाइल बताने हैं इनको। दीजिए जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदका गज़ब को रब के गज़ब से बचाता है। सदका तमाम बुराइयों को दूर करता है। सदका तमाम बुराइयों को दूर करता है। 70 बीमारियों को 70 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 70 बुराइयों को रोकता है। 70 आपस में मोहब्बत बढ़ती है, माल बढ़ता है। आपस में मोहब्बत बढ़ती है, माल बढ़ता है। और सदक़े से 70 भलाई के दरवाज़े खोलता है। सदका 70 बुराई के दरवाज़ों को बंद करता है। 70 बलाओं को रोकता है, ख़ताएँ मिटाता है, गुनाहों को मिटाता है। और सदका नेकी की चाबी है। सदका करने से उम्र में इजाफा होता है। सदका करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, लोगों में उस शख्स की इज़्ज़त बढ़ती है, रिज़्क़ में इजाफा होता है और घर वालों में आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सदका करने वाले की लोग इज़्ज़त करते हैं, सब उसकी तारीफ़ें करते हैं। हाँ भाई, राउंड अबाउट चला, फिर भी 1 नंबर तो ले लिया इन्होंने। आइए तशरीफ लाइए। अच्छा, सदका ज्यादा दिया करे भाई, बहुत सारे इसके फजाइल हैं। हमने सिर्फ 15 पूछे थे, बहुत सैकड़ों फजाइल होंगे इसके और किताबों में लिखे हैं। आइए अब बारी है हमारे सियाल शरीफ वालों की। जी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 15 खसाइस। नबी पाक के 15 खसाइस। सुभान अल्लाह, मेरे आका तो सरतापा खुसूसियत हैं, मगर 15 स्पेशलिटीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा फरमाया और सबसे आखिर में मबऊस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 4 मरतबा सीना शक किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके साथ ऐसा नूर था जिससे बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने शाम के महल देख लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बुत सजदे में गिर पड़े। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सर की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला से कलाम फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम बने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु। आपका पूरा हो गया है बेटा। एक और चीज भी आइंदा के लिए सीख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से आप पढ़ रहे थे आपको सारे याद थे। 15 क्या, हर आशिक के रसूल को बहुत सारे खसाइस पता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में थे। अब अगली बार करते वक्त जब पैदा हुए तो बुत सजदे में चले गए। जब नबी पाक करम, अब आप अगर पूरा नाम मुबारक दुरूद पाक यकीनन पढ़ते रहें, सारा दिन पढ़ते रहें, लेकिन जब मुकाबला हो तो कहाँ क्या शॉर्ट करना है उसको अगर आप देख लें तो और जल्दी हो जाता। बहरहाल आप 15 पूरे नहीं कर सके, आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। औलिया किराम के नाम, सहाबा किराम के भी जब नाम लेते हैं तो वहाँ रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आखिर में एक साथ कह लेंगे, रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम आखिर में साथ कह लेंगे। लेकिन अगर हर नाम के साथ आप ये करेंगे तो 60 सेकंड में जो पूरा करना है वो शायद आप पूरा नहीं कर सकेंगे। एक टिप है, आइंदा मुकाबलों में काम आएगी। नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में लेते हैं और उसके बाद स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी, मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं बात कर रहा हूँ बारिकपुर जिला भावलपुर से। आज मैं आपको आला हज़रत के लिखे हुए कलामों के 15 मकतब सुनाऊंगा क्योंकि असाइनमेंट है 1500वां जश्न मिलादत। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सरवर कहूँगे मालिक मौला कहूँ तुझे, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। सच्ची बातें सिखा बताते ही है रमयाती नजीरों कफी नजरीन, सबसे ओला वाला हमारा नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अल्लाह अल्लाह के नबी से लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। सुना जंगल रात अंधेरी चाय बदली काली है, वो सुहेल अल्लाह जार फिरते जरे जरे झरकर तेरी पेजार होंगे। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के, नूरे बारी हिजाब में हम जमीनों जमा तुम्हारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। अगले बार ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन में भी हिस्सा लें। जरा मंच पे आए, फिर आपसे पूछेंगे आपको कितने याद रहते हैं। चलें जनाब, एक और कॉल दीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद इमरान नवाब शाह से। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज़ है कि प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश के अंदर सेगमेंट फ़िक़ही पहलियाँ शामिल ज़रूर कीजिएगा।
चले माशाल्लाह, फिकही पहलियों की भी रिमाइंड आ गई है। आज देखें एक नई चीज़ हमने शामिल कर ली है, अब इंशाल्लाह ग्रेजुअली आप देखेंगे कि और चीज़ें भी शामिल होती रहेंगी। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दिल तड़पता है मदीने की, हमें भी दीद हो, हम भी देखें। स्कोर बोर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। 20 नंबर है सियाल शरीफ के, 22 नंबर है मीरपुर कश्मीर के। अगला सेगमेंट बहुत प्यारा है, फिके हनफी और उसके दलाइल। सवाल है मीरपुर कश्मीर वालों से, क्या भतीजा और भतीजी को ज़कात दे सकते हैं? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर भतीजा भतीजी शरी हकदार हो, शरी मुस्तहिक हो और गैर सैयद गैर हाशमी हो तो इसको इसको ज़कात देना जायज़ है, बल्कि अफजल है और इसका सवाब डबल है, क्योंकि इसको सदका देने से सिला रहमी भी हो जाएगी और सदका भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा, अल्लाह ताला किसी शख्स का सदका कबूल नहीं फरमाता कि इस हालत में कि उसके अहले कुराबत यानी उसके अहले कुराबत सिला रहमी के मोहताज हों और वो गैरों को सदका कर दे। और कसम उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान, अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। रहमती यानी कबूल ना होने से मुराद है कि इस पर उसको सवाब नहीं मिलेगा। यानी नाज़रीन जो सदका गैरों को दे अपनों को ना दे, अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह करीम उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा और अल्लाह पाक उसका सदका भी कबूल नहीं फरमाता जो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर गैरों को देता है। डबल सवाब है अगर करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें सदका दिया जाए, सिला रहमी करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भैंस की कुर्बानी करना कैसा है? इमाम आजम के नजदीक क्या मौकिफ है और उसकी दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भैंस या कट्टे की कुर्बानी करना जायज़ है। हज़रत सैयदना लैस बिन अबी सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि भैंस और बुख्ती ऊँट अज़वाज समानिया यानी 7 नर और मादा में शामिल है। 8 समानिया क्या होता है? 8 होता है ना। 8 नर और मादा में से हैं, यानी कट्टे की और भैंस की कुर्बानी जायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कुर्बानी करने वाला अपने जानवर का गोश्त खा सकता है? इमाम आजम का इसमें मौकिफ क्या है? दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन मस्जिद ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह भूखे खाली पेट तशरीफ़ ले जाते और वापस आके अपने कुर्बानी के जानवर में से कलेजी से खाने से इब्तदा करते थे। और इसकी दलील हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी साबित है कि आपने एक मरतबा 2 मेंढू की कुर्बानी फरमाई और अपने गुलाम से फरमाया कि इनमें से कुछ गोश्त मेरे खाने के लिए ले आओ। जी जनाब, कुर्बानी करने वाला अपने जानवर का गोश्त खा सकता है। हदीस भी आपने सुन ली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फसल की ज़कात किस तरह निकाली जाए? इमाम आज़म अबू हनीफा का इसमें मौकिफ क्या है और दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फसल की ज़कात मुकम्मल पैदावार में से 10वां हिस्सा यानी 10वां हिस्सा उशर है और मुकम्मल पैदावार में से 10वां हिस्सा उशर है और निस्व पैदावार में से 20वां हिस्सा यानी कि 5% है। और इसकी दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खेती को आसमान यानी बारिश सैराब करे उसमें उशर है और जिस खेती को
डोल के जरिए सैराब किया जाए उसमें निस्फ उशर है। जनाब याद रहे कि इमाम आजम का मौक़िफ़ ये है कि उशर का मतलब मुकम्मल पैदावार का 10वां हिस्सा होता है, यानी 10% होता है, और निस्फ उशर का मतलब पूरी पैदावार का 20वां हिस्सा यानी 5% होता है। और आपने हदीस में सुन ली कि जिस खेती को आसमान सैराब करे, यानी खुद बारिश से ही वो फसल उगती है, तो उसका उशर पूरा है, और जिसको डोल से सैराब किया जाए उसमें आधा उशर है। इसकी पूरी एक तफसील है, तो वो किसान, वो ज़मींदार हजरात जिनकी फसलें होती हैं, उन्हें उशर देना चाहिए, ये फ़र्ज़ है, इसको अदा करें ताकि आपकी फसलों में और बरकतें हों, और आप इस अगर नहीं देते तो ये वो गुनाह है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, आइए कॉल शामिल करेंगे और उसके बाद फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे। ज़हनी आजमाइश इल्म दीन की बहारें लुटा रहा है। एक अर्ज़ है कि ज़हनी आजमाइश में कोई ऐसा सेगमेंट भी शामिल किया जाए जिसमें पीर साहब के मलफूजात भी सुनने को मिले और उनकी ज़ियारत भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा जनाब, सीख कबाब वाला शेर पूछा गया था, तो वाकई शेर है, मुझे भेजा किसी ने। क्यों ना लाए सोज ले करूं, क्यों खूने दिल पीऊं, सीखे कबाब हूं न मैं जामे शराब हूं। चले जनाब, जिन्होंने शेर भेजा अगर सही भेजा तो बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैंने नहीं सुना था लेकिन आज मैंने पढ़ लिया इसको। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। जनाब 24 नंबर है सियाल शरीफ के, 26 नंबर है मीरपुर कश्मीर के। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जनाब मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है, मार्कर लीजिए, अपने बोर्ड के पास पहुंच जाइए। लफ्ज में आपको बताऊंगा और 30 सेकंड में आपने पहुंचना है। आपने लफ्ज ढूंढना है इखलास, इखलास लफ्ज ढूंढना है 30 सेकंड के अंदर। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, हर इखलास ऐसा अता या इलाही। टाइम खत्म हो गया जनाब। कोई है जो यहाँ से इखलास ढूंढ के ले आए? वैसे इखलास ढूंढना है बड़ा मुश्किल, आज के दौर में इखलास मिलता नहीं है। चले जनाब, देखिए किसको बुलाते हैं, कौन हमें ढूंढ के देगा इखलास। इस बोर्ड से ही ढूंढ दे, नहीं बच्चों के लिए तो मुश्किल है। देखें देखें जल्दी, किसी को देखें। अच्छा मिल गया आपको, आपको भी मिल, चलो जाओ आ जाओ, चले, क्या बात है, चले भाई ढूंढ के दें इखलास। हाँ भाई सही है, मुझे भी मिल गया। अल्लाह करे हकीकी इखलास भी मिल जाए, क्या बात है। बच्चा बच्चा तेज है भाई, माशाल्लाह। चले भाई तोहफा दे इनको, माशाल्लाह। लगता है इसमें भी एक सेगमेंट शुरू करना पड़ेगा, मदद वाला। सियाल शरीफ वाले आ जाएं और हमें ढूंढ के दें अनकबूत, अनकबूत। अनकबूत। पंद्रह सेकेंड है आपके पास। मैंने तो ढूंढ लिया है जनाब, 5 सेकेंड रह गए हैं। आपका वक्त भी खत्म हो गया जनाब, अब आप वापस आ जाएं। चलें, अनकबूत कौन ढूंढेगा? तो 3 दिन काफला भी लेना भाई। चले आ जाए भाई, बड़ा सामने अनकबूत तो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि कभी कभी सामने की चीजें भी जो है ना वो नजर नहीं आती। अनकबूत लीजिए। आ जाए माशा। अनकबूत। अन के बाद पूरा नहीं हो रहा ना। वक्त खत्म हो गया, पूरा हो गया इनका भाई, माशाअल्लाह। तशरीफ लें। चले आ जाएं, आ जाए, टाइम पूरा हो गया आपका। चलें, ट्राई तो बड़ी की इन्होंने,
अच्छा 5 सेकंड 5-10 सेकंड में आप जरा करके देखिए। अच्छा, अनकबूत मुझे मिल गया था, अब कहाँ गया याद नहीं आ रहा। यही तो मंच पे ये वही वाली बात है कि मंच पे आने के बाद जो है, मेरा ख्याल दूर से इसको पकड़ा था, अभी ढूंढते हैं इसको इंशाल्लाह। चले अब्दुल हबीब भाई का वक्त स्टार्ट करें। वक्त स्टार्ट करेंगे मेरा भी, ठीक है यार, ऐसा एंड करो। 30 सेकंड का काउंटर चलाएं। ऐसा आपका वक्त शुरू हो गया अब। अच्छा चला। और देखिए वाकई यही चीज है मंच, हालांकि मैं दूर से बैठ के मैंने ढूंढ लिया था और था भी बड़ा सीधा सा, अनकबूत। नाजरीन जरा मदद कीजिए मेरी। अल्लाह। अच्छा 5वीं लाइन, हिंट आपको दे रहे हैं 5वीं लाइन में। मैंने ये कहा, मैंने पहले ढूंढ लिया था इसको, लेकिन जो ना वो वाली थोड़ा सा मिक्स, उसका मुकाबला नहीं हो रहा होता। अनकबूत हो गया। चले जनाब, अब आए कश्मीर वाले आ जाए। हाय हाय, कश्मीर वालों को बड़ा अच्छा वाला मिल रहा है, लफ्ज मदीना। हाय मदीना दिल के अंदर हो, दिले मुस्तर मदीने। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यार। चले माशाल्लाह, मदीना मदीना ढूंढ लिया इन्होंने, सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीना दिखाया है। मदीना कितनी जल्दी मिल गया ना। चले भाई आ जाओ भाई, सियाल शरीफ, अल्लाह करे मदीना जल्दी जल्दी मिल जाए। आमीन आमीन। अब एक बड़ी अजीम हस्ती का नाम आपने ढूंढना है और उनका नाम है अली असगर। अली असगर। अली असगर। अली असगर मुझे मिल गया जनाब। आपका वक्त पूरा हो गया है। अब इधर ही खड़े रहे, आपको बताता हूँ। नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलके इसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, चले जनाब, बहुत शुक्रिया। नहीं पहुंच सके सियाल वाले, कोई बात नहीं, अगले किसी सेगमेंट में आगे बढ़ जाएंगे। अब वक्त हुआ है दोनों टीमों का, आगे तशरीफ ले आए, अपने अपने नेक अमाल का जायजा भी करेंगे, नाथखानी भी करेंगे इंशाअल्लाह, अपने मुकाबले को लेकर आगे हटिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप नेक अमाल का जायजा मोबाइल एप्लीकेशन में करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए या रिसाले निकाल लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू करते हैं। अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाजें बाद जमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ो चाश्त आपने पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज़ अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की,
بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک در دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے نعت شریف میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، نگاہ لطف کے امیدوار آقا ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا
رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں لطف و رحمت کا ہوں خواہاں یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کا ہوں خواہاں یا رسول اللہ میری سب مشکلیں ہو جائے آسان یا رسول اللہ محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اور میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر شرمندہ سایہ بہت شرمندہ سایہ بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سر بھی خم آنکھ بھی نو شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس اور دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں
ادا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض اے بے کسوں کے حاملوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ سرکار حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ اب تو اس وقت ہم مدینہ پاک میں نہیں ہیں بلکہ بہت دور ہیں، مگر یہاں سے بھی تو عرض کر سکتے ہیں کہ حضور محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ یقیناً وہاں سے توجہ ہو گئی تو بڑے مشکل جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ کریم نگاہ مصطفیٰ اور کرم والی نظر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ شاہد صابر اتاری پنڈی گھیب سے عرض کر رہا ہوں، میرا ناقص مشورہ یہ ہے تلاش کیجئے سیگمنٹ جب شروع ہو تو بورڈ کو ایک دفعہ فل سکرین پر دکھا دیا جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین اس کی پکچر بنا لیا کریں، اور جب لفظ تلاش کرنا ہو تو وہ بھی گھر بیٹھے آسانی سے اس کو تلاش کر سکیں۔ چلے واہ بھائی واہ، گڈ آئیڈیا۔ ذہنی آزمائش گھر میں بھی تو ہو رہا ہے نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، امید ہے مجلس نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں ہوں امیانی اتاریہ پاک پٹن شریف سے۔ ذہنی آزمائش میں تو ابھی سیگمنٹ خاندانی رشتے نہیں آیا، لیکن عبدالحبیب انکل آج میں آپ سے سیگمنٹ خاندانی رشتے کروں گی۔ آپ کے دادا کے بیٹے کے بیٹے کے نانا کی بیٹی آپ کی کیا لگی؟ میری بچوں کی والدہ لگی۔ چلیں جواب درست ہے باپو؟ جواب درست ہے۔ چلیں جزاک اللہ۔ چلیں جناب، بہت لمبا گھمایا ویسے آپ نے، پہلے میرے دادا تک پہنچے، پھر واپس نیچے لا کے پھر نانا پہ لے گئے۔ بہرحال بہت شکریہ۔ اچھا اب چلتے ہیں، ایک بار ہم روزانہ بچوں کی حدیثیں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بچوں نے، اسلامی بھائیوں نے کیا ویڈیوز بھیجی ہیں حدیث پاک یاد کر کے، ریکارڈ کر کے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، آج کی حدیث نوٹ کر لیجئے اور ویڈیوز بھیجئے، مگر کل دوپہر 12 بجے سے پہلے بھیج دیں پاکستانی وقت کے مطابق۔ آج کی حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، حیات النبی پر کیسی شاندار حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ اسکرین پر ایک بار پھر دکھا دیں، جنہوں نے پکچر لینی ہے لے لیں، اور جلدی جلدی ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہم کل دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔
24 नंबर है सियाल शरीफ के, 28 नंबर मीरपुर कश्मीर के। अगला सेगमेंट कुरान के हवाले से यूनिक मालूमात हमें मिलती हैं, नाम है कुरानी मालूमात। जनाब मीरपुर कश्मीर वालों से सवाल है, साहिबुल हूत कुरान पाक में किसको कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साहिबुल हूत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा गया। जी जनाब, मछली के पेट में आप रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सियाल शरीफ से सवाल, सियाल शरीफ वालों से सवाल है, सूरह आले इमरान में लफ्ज आले इमरान कितनी बार आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत आले इमरान में लफ्ज इमरान एक मरतबा आया है। आले इमरान लफ्ज कितनी बार आया है? एक मरतबा। आले इमरान लफ्ज एक बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो सीन मीम से कितनी और कौन कौन सी सूरतें शुरू होती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सीन मीम से 2 सूरतें शुरू होती हैं, सूरह शुअरा और सूरह कसस। सूरह शुअरा, सूरह कसस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुछ सूरतें हैं जो एक ही लफ्ज से शुरू होती है, वो कितनी हैं और कौन से अल्फाज हैं? वो एक हर्फ से शुरू होने वाली कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 सूरतें हैं, क़ाफ, स्वाद, नून। जी हाँ, 3 सूरतें ऐसी हैं जो एक हर्फ से शुरू होती हैं, सौद, कौफ और नून। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब जबरदस्त तैयारी है, मगर फर्क भी है मुकाबले में। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल शामिल करते हैं। जी मोहम्मद मुनीबुर रहमान अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 17 अपनी बरकतें लुटा रहा है। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से एक अर्ज ये है कि ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप के अंदर भी न्यू सेगमेंट्स ऐड किए जाएं। चले जनाब, ये भी बिल्कुल ठीक है, पुराने सेगमेंट्स हो गए हैं, हमारी मजलिस राब्ता करे IT मजलिस से और नए सेगमेंट्स भी उसमें ऐड किए जाएं। चले जनाब, एक बार स्कोर बोर्ड देखते हैं और आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। 28 सियाल शरीफ और 32 है मीरपुर कश्मीर वालों के। जनाब 4 नंबर का फर्क है जो कवर करना होगा सियाल शरीफ वालों को। आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है। जनाब सियाल के इस्लामी भाई चले जाएं कश्मीर, कश्मीर वाले आ जाएं सियाल शरीफ। अब अलग अलग सवाल होंगे, सबसे सही कहना है या गलत कहना है। बिलाल फैज भाई हैं, आपसे सवाल है, हजरत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि तआला का मजार पाक पतन में है। गलत। ईद उल फितर का दिन तमाम दिनों का सरदार है। गलत। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुस्तजाब कहते हैं। सही। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। गलत। कुरान का कल्ब सूरह यासीन को कहा जाता है। सही। एक गलती हो गई है जनाब, मुस्तजाब उसको नहीं किसी और जगह को कहते हैं, गलती हुई है। अब बारी है मोहम्मद रिजवान की। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस नमाज के मौजू पर है। गलत। दारोगाए जन्नत का नाम मालिक है। गलत। जिन्नात को बट्टी से पैदा किया गया। गलत। शवाल शरीफ 10वां महीना नहीं है। सही। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला की वालदा का नाम हजरत फातिमा नहीं है। गलत। एक आपने गलती की है जनाब। 4 नंबर दोनों ने हासिल किए हैं। दानियाल भाई की बारी है। काबतुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे मुस्तजार कहते हैं। गलत। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने पहला फतवा 14 साल से भी कम उम्र में दिया। सही। फतावा अमजदिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी के फतवों पर मुश्तमिल है। सही। मदनी मुज़ाकरा हर जुमेरात को हुआ करता है। गलत। चुगलखोर क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मोहम्मद जीशान फ्रॉम सियाल शरीफ, तबीयत कैसी है आपकी? सही या गलत? अच्छी है ना, तो कह दो सही है भाई, नंबर नहीं मिलेगा। चले, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। गलत। सफा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को रमल कहते हैं। गलत। इकरा के माना है लिखो। गलत।
एक रिवायत के मुताबिक इंसान को दी गई सबसे बेहतरीन चीज हुस्न अखलाक है। सही। इमाम गजाली की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। जनाब नहीं, उनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद नहीं है, गलती हुई है। 4 सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है रिहान भाई की, जिनका ताल्लुक है मीरपुर कश्मीर से। जनाब, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। सुतरा कम से कम 1 हाथ ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। जन्नतुल माला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सफेद रंग का इमामा शरीफ भी बांधा है। शबे कदर 27 रजब को होती है। जनाब, जन्नतुल माला मक्के का कब्रिस्तान है, मदीने का नहीं। एक गलती आपसे भी हुई है। अब बारी है हमारे रिहान सफीर साहब की, इनका ताल्लुक सियाल शरीफ से है। पंजगाना नमाज शबे मेराज में फर्ज हुई। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। हदीस पाक में मीज़ान अमल में सबसे वजनी अमल नेकी की दावत को कहा गया है। सही। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। हजरत अली मुतम्मिमुल अर्बईन हैं। गलत। जनाब, आपसे भी एक गलती हुई है, 4 नंबर हासिल किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज का मुकाबला मीरपुर कश्मीर वाले जीत गए हैं। माशाअल्लाह। सियाल शरीफ के इस्लामी भाइयों ने अच्छी कोशिश की, मगर दोबारा अच्छी तैयारी करके आए। दोनों टीमों के इस्लाम भाई आगे आ जाएं। इंशाअल्लाह सियाल शरीफ वालों को एक मौका मिलेगा और फिर इंशाअल्लाह तैयारी करके आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था, उसकी कुरानदाजी भी इंशाअल्लाह करेंगे और आपको आइए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी हम देते हैं कि आज सब में किसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो माशाअल्लाह सारे ही इस्लामी भाई बड़े अच्छे हैं यहाँ पर। रिहान भाई को इंशाअल्लाह कश्मीर की तरफ से हम ये बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट देंगे माशाअल्लाह। और ज़हनी आज़माई, पहले सवाल का जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बगैर पानी के दरख्त उगाया गया? सुभान अल्लाह। जी, आप जवाब आप स्क्रीन पर देखेंगे और हमारे पास जो शजरे यूनुस है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ये दरख्त उगाया गया था जो कद्दू का दरख्त था और बगैर पानी के पैदा हुआ। जी, हमारे पास जो नाम है मोहम्मद अदनान इस्लामाबाद, मोहम्मद शाहिद मुल्तान, हुसैन खारियान आतिफ अली बिन लियाकत अली बिनते बशीर, मोहम्मद बिलाल अत्तारी, जोजा मोहम्मद मुर्तज़ा अत्तारी बिनते मुस्तनसिर, मोहम्मद शोएब अत्तारी बिनते इरफान अली ठट्टा, हुजूर बख्श मदनी, राव तनवीर अत्तारी, मंजूर कॉलोनी कराची। इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और कुरानदाजी में जो नाम आए मोहम्मद शाहिद मुल्तान, मोहम्मद शाहिद मुल्तान, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफा पहुँचाया जाएगा। चले, वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड दिखाते हैं आपको और कैसे मुकाबला चलते 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 आखिरकार मीरपुर कश्मीर के इस्लाम पे जीत गए। 40 नंबर सियाल शरीफ, 45 नंबर मीरपुर कश्मीर। आइए नाज़रीन, एक सवाल किया गया था, वेरी यूनिक क्वेश्चन, कि सबसे पहले मुसलमानों ने मंजनीक, ये एक तरह की तोप समझ ले हुआ करती थी, मशीन हुआ करती थी जिससे पत्थर फेंके जाते थे जंग में, ये किस शहर वालों के खिलाफ मुसलमानों इस्तेमाल की? जवाब दुरुस्त था, ताइफ। और अब बताते हैं आपको 5 लकी ड्रॉ में नंबर कौन से हैं जिनको तोहफा जाएगा। ये आपके सामने आईडीज हैं, इसको सेव कर लें। अब आपको नाजरीन आज सवाल देंगे जिसका जवाब आपने कल मुकाबला शुरू होने से पहले देना है। कौन सी मस्जिद अल्लाह की नाराजगी का सबब बनी? कौन सी मस्जिद अल्लाह की नाराजगी का सबब बनी? आपने इस मस्जिद का नाम बताना है। अच्छा जनाब, अब बताते हैं कल मुकाबला किसका किसके साथ है। कल 3 टीमों का मुकाबला है और इन तीनों टीमों के लिए कल आखिरी मौका है, भरपूर तैयारी करके आना है। फैसलाबाद, मरी और सियाल शरीफ। अब देखना यह है फैसलाबाद, मरी या सियाल शरीफ में से कौन सी टीम आगे जाती है। वक्त हुआ है आज मारिफतुल कुरान, तर्जुमाए कुरान जो है, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमाए कुरान भी इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद हाजरीन बड़ी तादाद में आए हैं, कुरानदाजी के जरिए देंगे इंशाअल्लाह। 4948 आ गए भाई माशाअल्लाह। इनको शायद पहले भी मिला है, यही मिला था। अच्छा दोबारा, तो फिर कोई इशार कर दो यार। चलो आ जाओ, आप कोई और किताब खरीद लेना, आपके नसीब में। देखिए दूसरी बार इनको यही तोहफा मिल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. کیا پڑھ کے کچھ خاص وظیفہ ہے کوئی؟ چلیں جناب, بچوں کے لیے اب اگلی بار کے لیے ہمارا اصول یہ ہوگا کہ جن کو ایک بار مل چکا ہے اب ان کی پرچی نکلے گی تو پھر ان کو کوئی اور تحفہ دیا جائے گا تاکہ ہم اور لوگوں تک بھی پہنچائیں. لیکن چونکہ یہ اصول ہم نے پہلے بیان نہیں کیا تھا تو اس لیے دوسری بار ان کو مل گیا. 4910 بچوں کا 4910. چلیں ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام 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 یا رسول اللہ, السلام 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 یا حبیب اللہ. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام, سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ, السلام 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 یا حبیب اللہ. رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر, رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر, میرے مولا حیدر کردار پر لاکھوں سلام. ہے یقیناً ہر صحابی جان سارے مصطفیٰ, ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ, السلام 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 یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا, اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام. میٹھے مرشد نے مدینے پاک میں پایا مزہ, میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزہ. سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ, السلام 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 یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا پھر ذہنی آزمائش, آ گیا